Good morning, students. I hope you all are fit and fine and safe at your home. So, let's start with our today's topic, which is calculation of space occupied. As in the previous lecture, you have read about primitive and non-primitive unit cells, in which there are four types: simple cubic, face-centered, body-centered, and end-centered cubic. So now we will do the packing efficiency, which is an important topic from this chapter, and where you have to calculate the packing fractions of three of the types, that is simple, face-centered, and body-centered cubic, and you don't have to do it for end-centered cubic. And so let's start with today's topic. So first of all, you have to do the definition of packing fraction, which is very easy, and you can learn this value from its name as well. For example, packing fraction. Fraction means the percentage of total space filled by the particle. For example, you can see this particle. There are so many particles are there, and those particles have some space. So the percentage of total space, जितना space लिया उन particles ने fill करने के लिए, is called its efficiency. तो वो उसकी packing की efficiency होती है, ठीक है. और the fraction of total space filled, और जितना हमने स्पेस फिल किया उसके फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, उसका पैकिंग फ्रैक्शन. सो दिस टर्म इज़ वेरी वेरी इजी टू लर्न, दैट द अमाउंट ऑफ स्पेस फिल्ड बाय एनी पार्टिकल्स, एंड दैट परसेंटेज इज नोन एज पैकिंग efficiency, and that fraction is called as packing fraction. So let's start with the calculation. So first term is simple cubic unit cell, and as you can draw this unit cell, and I hope so you all have practiced those space lattice and unit cells in your notebook, but I didn't get any pictures from you all. So take it serious, students, and because if you will practice it, then you will create, or you have to face any query or doubt, only then I can solve it. But if you are not doing anything, then how I can solve it? Okay, so please take it seriously and start doing all the topics, and regular classes attend कीजिए, उसको serious लो, and start pull your socks. Okay, so let's start with simple cubic. As you know, in simple cubic we have total 8 corners. 8 corners होते हैं, total number of particles उसमें 8 होते हैं. So 1 2 3 4 on the upper side and 4 on the lower side. So ये सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है. हम बात करें सिंपल क्यूबिक के लिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. सो आप यहाँ पर डेरिवेशन में भी देख सकते हैं, और मैंने आपको ऑलरेडी नोट्स भी सेंड कर दिए हैं इसके, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. बट मैं आपको इसको करके दिखाना चाहती थी, दैट इज़ वाई आई एम डूइंग इट ऑल फॉर यू. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे देखिए, ये हमारे पास दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस है, तो ये इसकी एज लेंथ हो गई. क्या है ये? एज लेंथ ए. रेडियस, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या हो जाएगा, उसका रेडियस. सो ए इज़ द एज लेंथ एंड आर इज़ द रेडियस. ये दो टर्म हम यूज़ करेंगे इधर. एंड आपको पता ही है कि ये जो एक एज लेंथ है वो दो रेडियस से मिलके बनी है, तो हम लिख सकते हैं ए इज़ इक्वल टू 2r. ए इज़ इक्वल टू 2r बिकॉज वो 1 + 1 r+r 2r से मिलके बनी है. सो अब वही सेम चीज़ स्टार्ट करते हैं जो हमने न्यूमेरिकल कल किए थे, दैट नंबर ऑफ स्फीयर्स पर यूनिट सेल. एक यूनिट सेल में, एक सिंपल क्यूबिक में कितने होते हैं टोटल नंबर ऑफ स्फीयर्स? 1/8 उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, टोटल नंबर 8 है. सॉल्व किया, आंसर कितना आया? 1. नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. स्फीयर की वॉल्यूम कितनी होती है? 4/3 πr³. ये आपको मैथ से पता ही होगी, ये आप छोटी क्लासेस में ऑलरेडी कर चुके हैं. ये हमने लिखी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ क्यूब. क्यूब की वॉल्यूम बच्चे सबको ही पता होगी, जितनी भी एज लेंथ होती है उसका क्यूब. अब ए क्या है? फर्स्ट टर्म से हम डिटरमाइन कर सकते हैं. ए इज़ इक्वल टू 2r. मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है. ए इज़ इक्वल टू 2r. 2r का होल क्यूब. 2 का क्यूब कितना होगा? 8. सो दिस वैल्यू बिकम्स ए क्यूब इज़ इक्वल टू 8r क्यूब. वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ ए 8r. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इवेंचुअल थिंग विच इज़ फ्रैक्शन. जो हमें फ्रैक्शन निकालना है, फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड. फ्रैक्शन और पैकिंग फ्रैक्शन में उसको लिख सकते हैं, जो होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइड बाय
वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इन दोनों टर्म्स के डिवीजन को हम बोलते हैं फ्रैक्शन, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं टर्म्स को। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना था बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब, एंड ये जो अभी हमने निकाला वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट इज 8 आर क्यूब। सो वी कैन कैंसिल आउट आर क्यूब बाय आर क्यूब एंड 4 to 8, देन आर वैल्यू बिकम पाई इज़ 3.14। आप इसको डायरेक्ट पुट कर सकते हैं पाई की वैल्यू, एंड डिवाइड बाई 3 इंटू 2। सो आप जब भी इस वैल्यू को सॉल्व करोगे कंप्लीट, तो आंसर विल बिकम 0.524। ओके, सो ये हमारा फ्रैक्शन निकल गया है। फ्रैक्शन और पैकिंग फ्रैक्शन इज 0.524। बट व्हाट अबाउट परसेंटेज फ्रैक्शन? तो अगर हमें परसेंटेज निकालना है, क्योंकि मेन तो हमारा यही काम है कि उसकी परसेंटेज ऑक्यूपाइड निकालनी है, सो परसेंटेज के लिए ऑफ कोर्स वी कैन मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय 100 एंड आंसर विल बी 52.4%। ओके, वेरी इजी, दिस इज़ वेरी इजी टॉपिक, बहुत कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाला, क्यूब निकाला, बस आपको पता होना चाहिए कि ए का रिलेशन क्या है। अगर ये सिंपल क्यूब है, ए इज इक्वल टू 2r, बस ये फर्स्ट टर्म है जो आपको याद रखनी है, बाकी सब कुछ सेम है इसके अंदर, ठीक है। और ये जो टर्म है ये आपकी सिंपल क्यूबिक है, इसलिए हुई है। नेक्स्ट हम फेस के लिए बताती हूँ मैं आपको। ये फेस सेंटर्ड के लिए डायग्राम है, सेम वही क्यूब मैं आपको डायग्राम पहले ही बना के दिखा चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर में। सो ये हमारे पास, क्योंकि फेस लिया है हमने, वी टुक दिस फेस एंड दिस इज़ द एज लेंथ। अभी हमने क्या करना है बच्चे, यू कैन सी दिस इज़ अ ट्राइंगुलर फॉर्म, और यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। दिस इज़ लेंथ और परपेंडिकुलर, दिस इज़ हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज़ बेस। सो फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। सो हमारे पास जैसे ये वैल्यू है, हमने ये निकालना है A to C वैल्यू, देखिए। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। जब ये हाइपोटेन्यूज निकालना होता है स्क्वायर के लिए, हम इसको अंडर रूट कर सकते हैं, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। p मीन्स परपेंडिकुलर जिसकी वैल्यू a है, b मीन्स बेस जिसकी वैल्यू भी a है। AC हमें कैलकुलेट करना है, ये इसी को यहाँ पर अलग से दिखाया हुआ है। बस इसकी वैल्यूज़ पुट कर लो, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा √2a, ठीक है। ये यहाँ तक हुआ हमारा AC का, ठीक है। चलो अब उसके बाद देखिए ये क्या लिखा हुआ है, √2a। सबसे पहले देखिए AC की जो वैल्यू थी वो 4r के इक्वल है। क्यों है वो AC की वैल्यू 4r के इक्वल? क्योंकि यहाँ पर दो एज लेंथ से मिलके बना है। ये यहाँ तक A है और यहाँ तक भी A है। सो AC क्या होगा, AC इज इक्वल टू A प्लस A, 2a। और अभी हमने पीछे टॉपिक में किया कि 1a एक एज लेंथ दो रेडियस की इक्वल होती है। पुट कर दीजिए यहाँ पर 2 इंटू 2r। सो हमारा वैल्यू कितनी आई, 4r। AC इज इक्वल टू 4r। तो यहाँ पर दो AC की वैल्यू आ गई है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, दोनों को आप इक्वल रखेंगे तो आपका एक रिलेशन आ जाएगा दोनों के बीच में। स्मॉल a एच लेंथ इज इक्वल टू 4/√2 इंटू r। बस यही चीज़ थी जो आपको याद रखनी है, और याद भी नहीं है, बहुत इजी चीज़ है। ये आपकी मैथमेटिकल फॉर्म है कि आपने कैसे पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करनी है, दो इक्वेशंस को इक्वेट करना है और एक रिलेशन निकाल देना है। बस उसके बाद बिल्कुल सेम एज इट इज़ वही सेम प्रोसीजर है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, एक ही जगह आपको ये रिलेशन पुट करना है और सेम टर्म करनी है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका इवेंचुअल आंसर आएगा 0.74, वही प्रोसीजर लगा के, और परसेंटेज के लिए आंसर आ जाएगा 74%। सो ये हमारा आया है किसके लिए बच्चों, फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए। दिस इज़ फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड के लिए पैकिंग फ्रैक्शन होता है 74%। नेक्स्ट बॉडी सेंटर्ड है। सो बॉडी सेंटर्ड में आप डायग्राम देख सकते हैं, क्योंकि हमने बॉडी लेनी होती है। बॉडी मतलब कंप्लीट, यहाँ से एक कॉर्नर से लेके लास्ट कॉर्नर तक बॉडी लेनी है हमें। देखिए ऊपर वाला डायग्राम बिल्कुल सेम है, वही उसका एक फेस लिया है, बस बीच वाले डायग्राम में हमें फर्स्ट फेस उठाना, उसको लास्ट तक लेके जाना है, ठीक है। थोड़ा सा अलग है ये पहले वाले से। अभी हमें देखिए क्या निकालना है, ये देखिए A to D, हमें बॉडी से मतलब है तो हमें A to D ही चाहिए। जैसे हमें पीछे AC लिया था, वहाँ पर हमें फेस लेना था, यहाँ बॉडी लेनी है तो AD। सो AD की वैल्यू अगेन सेम वही, यहाँ तक एक एज लेंथ A है और यहाँ तक भी एक A एज लेंथ है।
So we can add both of these edge lengths to make AD, which will become again 4R as we have done in previous thing. So next term ये AC के लिए we already have calculated the relationship. AC is equal to root 2A. AC is equal to root 2A. So what we have to do, अब यहाँ पर हमें वो रिलेशन निकालना है. देखिए AD, AC एंड CD सेम आप यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. हमें AD कैलकुलेट करना है. सो AD इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. सेम वही पाइथागोरस थ्योरम के लिए AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. AC हैज़ वैल्यू रूट 2A. AC की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट 2A. एंड CD हैज़ वैल्यू A. यू कैन पुट दीज वैल्यू. जब आप ये पुट करेंगे सो योर आंसर विल बी रूट 3A. ओके, सो दिस इज़ फॉर AD. ये AD के लिए आपका निकला है रूट 3A. अगेन वही सेम चीज़ है कि आपको क्या करना है. रूट 3A इज इक्वल टू 4R. ये एक AD ये निकला और एक AD आप ऑलरेडी निकाल चुके थे. दोनों को इक्वेट करेंगे तो कितना आएगा? 4R इज इक्वल टू रूट 3A. बस योर एज लेंथ इज कैलकुलेटेड. Put this value again in volume of cube and you can again do that same thing. But एक चीज़ आप याद रखना जो इसमें सब में अलग होती है वो है नंबर ऑफ स्फीयर. जैसे हम फेस सेंटर के लिए कर रहे थे तो फेस सेंटर में ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स कॉर्नर्स के, ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स फेसिस के. दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी? 4. ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी बता चुकी हूँ. सो आई विल नॉट रिपीट इट अगेन कि हमारे पास जितने भी स्फीयर्स या जितने भी वैल्यू होती है हमें उसको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है. ठीक है. सो ये फेस सेंटर के लिए निकाला है. क्या से होते हैं? 6 पार्टिकल होते हैं टोटल फेस के और कंट्रीब्यूशन होता है 1/2. सो और सब में कॉर्नर्स तो होते ही हैं तो दैट इज़ वाई हमने ऐड किया इन वैल्यू को. तो आंसर कितना है? टोटल 4. जितने भी स्फीयर निकलते हैं उसको टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से मल्टीप्लाई कर देना है. ठीक है. फिर उसके बाद सेम वैल्यू. सेम यहाँ पर बिकॉज वी आर डूइंग इट फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक. सो बॉडी सेंटर्ड के लिए वही सेम कॉर्नर्स पे पार्टिकल है और 8 × 1/8 और बॉडी पे 1 ही होते हैं. वो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी बता चुकी हूँ. हमें क्या करना है कि देखो कॉर्नर्स तो हमेशा रहते ही रहते हैं. कॉर्नर तो रहेंगे ही. उसके अलावा फेस या बॉडी तो बीच में ही होती है ना. तो इसलिए कॉर्नर की वैल्यू तो हमेशा ऐड होएगी. सिंपल क्यूबिक में सिर्फ कॉर्नर थे इसलिए कुछ ऐड नहीं हुआ. तो हमने दोनों को ऐड किया तो हमारा आंसर कितना आया? 2. ओके. सो वही मैंने बताया जितने भी नंबर ऑफ स्फीयर आते हैं उसको वॉल्यूम निकालते हुए मल्टीप्लाई कर देना है. ठीक है. बस आपका वॉल्यूम भी आ गया, आपकी वॉल्यूम स्फीयर की भी आ गई, क्यूब की भी आ गई. दोनों को क्या करना है? डिवाइड करेंगे. सो आंसर कितना है? 0.68 विच इज़ 68%. So students, this is all about the pecking fraction of 3 of the term, that is simple cubic, face centered, body centered. You all have the notes of this topic and I think I have cleared this one. If you have any query then please watch out this video 2 to 3 times and you will definitely clear all the doubts. Okay. And still if you want to clear anything please feel free to ask me. You can WhatsApp me anytime before 5 PM and yes, we will continue this lecture on Monday. Till then, stay safe and start preparing for yourself for August unit test. And I have gave you only first unit, so whatever the portion is done, start preparing for it and make your notes properly so that in future time you can read out everything clearly. Okay, so good luck, have a nice day, bye bye.